ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ 11 ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತಾನಮ್ಮ. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವು ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಜಯಪುರ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಜಯಪುರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯರೇ, ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಈ ಮೂಲಕ ಬರೆದುಕೊಡುವ ವಿನಂತಿ ಅರ್ಜಿ ಏನೆಂದರೆ, ವಿಜಯಪುರ ಶಹರದ ಎಲ್ಲ ನಗರದಿಂದ ಬರುವ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಚೌಕದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ವರೆಗೆ ಸದರಿ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸದರಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸರ್ಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಜನತಾ ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸದರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮೇಲವರಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ವಿನಂತಿ. ಯಾವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಅದರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೀವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ಜಿ ಏನದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕೊಟ್ಟಿನ ಅವ್ರದ್ದು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ರಿಸಿಟ್ ಒಂದು ಇದು ಐತ್ರಿ ಕಾಪಿ ರಿಸಿಟ್ ಕಾಪಿ ಐತ್ರಿ. ನಿಮ್ದೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ದು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಕಿಸಿನ ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕ ಸಂಘ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಡೋದು ಉದ್ದೇಶವು ಏನಂದರೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕವರೆಗೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಏನದಂದ್ರೆ, ಅದು ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಅದು ತೆಗೆದ ಕಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ತಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರದಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಿರ್ತೋ ಅವಾಗ ಇವರು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ ಕೇಸಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ಕಿನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ಇವರನ್ನು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲೊಬ್ರು ಆಟೋದವರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೋಗಂತೀರಿ, ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಫೈನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ಕಿಂತ ಇವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಕಿಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಹಂಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಆಟೋಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎದಕ್ರಿ ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತೈತೆ? ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಎದರ ಸಂಬಂಧ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೇವೆ. ನಾವು ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದೇವಿ. ನಮ್ಮ ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ನಿಂದ್ರೆ ಯಾರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಫೈನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಸುನೀಲ್ ಗೌಡ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೊಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ SP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೊಂದು ಜಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. DC ಸಾಹೇಬ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಸಂಘದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗಿ DC ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದು SP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ DSP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒನವೆ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೂರಾ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಟೋದವ್ರು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲ DC ಆಫೀಸರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರ ಮಠಪತಿ ಅವರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರ. ಲೀಗಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ತನಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾಳ ಬರ್ಲಾಗ್ತೈತೆ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಸರ್ ಬಸ್ಸಿಂದು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಆಟೋದವ್ರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಯ್ತದ ಆಟೋದವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೀ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇದು DC ಆಫೀಸರ್ ಸರ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ ಏನು ಆಗ್ತಾರ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ವೇ ಆಟೋ ಒನ್ ವೇ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಬೇಡ? ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ದಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಇದು ಇಟ್ಟೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಅದು ಮತ್ತ ನಮ್ಮ KC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಯಾರ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬಲ್ಲಿ ರೀ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಅವರು. ಅದು ಬಸ್ಸಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂದ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೀ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಗಾಂಧಿನಗರ ವಾಯಲಿಂದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಅವು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೇಳಿದೇವ್ರಿ ಸರ್, ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಹಾಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಟೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಮಗ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಕೇಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೇಸಿ ಬಸ್ಸೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದ್ರೆ ಐತ್ರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ ಅಲ್ರಿ ಸರ್, CPI ಸರ್ ಬಂದ್ರಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ ಸರ್. ಆ CPI ಸರ್ ಬಂದ್ರು, ಬಂದ್ ಕೇಸಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಫೈನ್ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, ಏನು 5 ಮಿನಿಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ತರಬೇಕೇಸಿ ನೀವು ಶೀಟ್ ಹಾಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ CPI ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅವಲ್ಲಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನ್ ಹಾಕೋದು, 500 ಹಾಕೋದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡಾಕ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಲಪ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತ 500 ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ದಂಡ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಅದು ಬಸ್ ಮುಂದೆ ತರದ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸೀಟ್ ಹೊಡಿತಾರ. ನಮಗೆ ನಾವು ಸೀಟ್ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಖಾಲಿನ ಪೂರ ದಿವಸ ಬರೀ ಖಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ರೀ. ಪೂರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಒಂದದು ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿರಿಬ್ರಿ ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಾಂಚೋಗ್ನು ಅಲ್ಲಿನೂ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಬರೀ ಆಟೋದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾರಿ ಸರ್ ಕಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ರೀ. ಫೈನ್ ರೀ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಕಟಿಂಗ್ ಬಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ರಿ ಸರ್, ಮೊದಲು ಆಟೋ ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಸರಿ ನಾ ಕೇಳಿವ್ರಿ ಅವಾಗ್ರಿ ನಮ್ಮ CPI ಬಿರಾದಾರ್ ಸರಿಗ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಾರ ಸರಿಗೆ ನಾ ಕೇಳಿನ್ರಿ ಸರ್. ಅವಾಗೇನಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಈ ಬಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅವಾಗ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅವು ಮೇಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೇಸಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಬಿಡಾಕತ್ತಾರ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೀ ಅಲ್ಲ ಬಸ್ ಬಿಡಾಕತ್ತ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ತೊಂದ್ರೆ ಐತಿ. ಮುಂದೆಲ್ಲ ಆಟೋಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರ್ತಾವ, ಒಂದು ಪೂರಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಸರ್. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ರೀ ಏನ್ ಮಾಡುದ, ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾಲಿಂದ ಏನೋ ನೀವೇ ನಮಗೆ सपोर्ट करो सर। मेन मुद्दा ये है कि जो गांधी चौक में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो इधर नो एंट्री की है और दीगर जो बस उधर ठहर कर पैसेंजर बटा रही है, उससे ऑटो वालों को बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ऑटो वालों को ये इफेक्ट पड़ रहा है कि एक तो शक्ति योजना और दूसरे बहुत सारे गवर्नमेंट योजना है, तो हमारे ऐसे ही ऑटो खाली घूम रहे हैं। वो घूमने के कारण उनका लोन वगैरह ऑटो का भरने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए हमें DC साहब से ये मनवी देने के लिए आए थे। ये हमना जो है हमारे ऑटो वालों को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ये पहली फुर्सत में DC साहब ये पूरे हमारी जरा मनवी को मद्देनज़र रखते हुए वो अपना ये करे, जो कार्रवाई करे। इसलिए क्या है, सब ड्राइवरों को लोन भरने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। वन वे क्यों किया गया? ये वन वे बहुत सारे लोगों से हमें उसके इसमें कर रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे बार हमें मनवी भी दे चुके हैं DC साहब को ये वन वे के बारे में। ये हमारे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों कर रहे हैं, और ट्रैफिक के लिहाज से कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारे ऑटो वालों की भी थोड़ी मिस्टेक होती है, नहीं बोल के नहीं। गांधी चौक में जब भी हमारे DC साहब हमारे को वन वे अगर वहाँ से पूरा खुला करेंगे तो हम सब ड्राइवरों से अपील करते हैं कि वो भी ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन का पालन करे, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या सबकी समस्या है। जो हमारे से किसी और को तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तकलीफ होने से क्या होता है, बाज़ लोगों को जो जाते रहते हैं, ट्रैफिक इधर उधर जमा हो गई तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। और एक बात क्या है बोले तो, ये वन वे की तरफ से दीगर प्रॉब्लम क्या हो रही है बोले तो, जो उसमें पेशेंट वगैरह रहते हैं, मतलब कैसा उम्र दराज लोग रहते हैं, इसीलिए उनको लेके जाने के लिए भी घूम से पूरे 2-2, 3-3, 4-4 बार सिग्नल पड़ रहा है उधर। उसलिए क्या है, आधा घंटा तो उधर ही निकल जा रहा है, बाद में आगे कब जाने का। अगर पेशेंट थोड़ा अर्जेंट भी रहता है, थोड़ा कुछ भी रहता है, और बास ड्राइवर लोग क्या करते हैं, जब पेशेंट आया गाड़ी में तो वन वे अगर जंप करने के लिए ये करने के लिए डरते हैं, क्योंकि पुलिस का फाइन पड़ता है वन वे जंप करने के लिए। इसलिए क्या मालूम है कि बाद लोगों उनको जो उम्र दराज रहते हैं वो लोगों को सिग्नल में ही लेके बैठते हैं, मतलब आधा घंटा 15 मिनट उधर ही चले गया तो पेशेंट को भी प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हमें DC साहब से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि DC साहब इसके वास्ते जो जल्द से जल्द जरा इसका कुछ ना कुछ करें, क्योंकि ड्राइवर लोग बहुत परेशान में हैं और उसका कुछ उनको रोजी रोटी का मसला है, और दूसरे फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं है। और दीगर ऑटो तो वो इलेक्ट्रिक ऑटो भी इतने आ रहे हैं,
वो ऑटो के लिए थोड़ा बहुत डीसी साहब जरा ब्रेक लगाएं। अभी क्या इस विषय को लेकर आप बीजापुर जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी से मिले? अब नजर में है क्या ये? हम तो बहुत सब लोगों को मिले हैं, बोले हैं, बताए हैं, वो देखेंगे करेंगे। आप ऑटो वालों को समझाओ, ऑटो वाले रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे करके बात बता रहे हैं। हम बार बार तो हम हर एक मीडिया में यही बता रहे हैं कि ऑटो वाले फर्स्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें, क्योंकि जब आपको कुछ तकलीफ होती है तो आप रोड पे जम के कुछ ऐसा कार्रवाई करते हैं, वो कार्रवाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत है, वो कानूनन जुर्म है। जो भी है बात है, जो बात करना है डीसी साहब से बोलो या एसपी साहब से बोलो या दीगर सीपीआर साहब से, ये जो भी क्या है मसले हैं वो मसलों को हम हल कर सकते हैं। आज आपने जो मेमोरेंडम दिया जिलाधिकारी, कौन सा संगठन है? क्या बोले? कौन सा संगठन से आपने? ये उत्तर कर्नाटक राज्य चालक मालक संघ। बीजापुर शहर के अंदर जो ऑटो वालों को तकलीफ हो रही है, किसी को भी नहीं दिखाई देता। क्यों बोले तो गांधी चौक में हर तरह के ऑटो, हर सर्कल से ऑटो आके गांधी चौक में इन्वॉल्व होता है। तो पूरे केसी मार्केट लाइन के अंदर गाड़ी आते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि सब में पहली बात जिला एसपी साहब को और जिला डीसी साहब को और एडिशनल एसपी साहब को और गांधी चौक ट्रैफिक सीपीआई साहब को हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इनको ट्रैफिक के बारे में जरा तुम्हें ध्यान देना। क्यों बोले तो सीपीआई साहब के पास हम 10 बार गए, 10 बार एक पीसी को ला के 3 नंबर तुम्हारा जो पॉइंट करें, 3 नंबर पॉइंट के ऊपर एक पीसी को एक एएसआई को डालो, बल्कि 10 बार हमें जाके बोले तो सीपीआई साहब बोलते हैं हम ना नहीं, सिब्बंदी नहीं है, सिब्बंदी कम है, ये बात हमारे को करते हैं। कौन हमें ठहर को ड्यूटी करना, वहाँ ऑटो वाले ठहर को ड्यूटी करना। तो इसलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है कि सारे डिपार्टमेंट वालों से एक 3 नंबर पॉइंट के ऊपर पूरी गाड़ी तुम्हें जो केसी मार्केट लाइन में ला रही, उस गाड़ी जाने के वास्ते एक एएसआई को, एक हवालदार को वहां डालना बहुत जरूरी है। और एक बात, ये जो वन वे कर रही गांधी चौक जनता मार्केट के अंदर ऑटो वालों के वास्ते पूरी मार्केट को छोड़े वहां, हाँ। और उसके बाद तुम्हें ला को बस वाले को वहां स्टॉप दी, तुम्हें उसका बस वाले को स्टॉप देने का कारण क्या है तुम्हारा? वहां एक तो पहली बात ऑटो वाले को ठहरने जगह नहीं है, वहां तुम्हें ला को 3-3 4-4 बस्सा स्टॉप करने दे रहे हैं। वहां तुम्हें बस स्टॉप करने के बाद आगे बस वाला स्टॉप कर रहा था, पीछे आगे तुम्हें फाइन देते हैं ऑटो वाले को। चलो भाई मानते तुम्हारे फाइन को, 100-200 दो, जो गलती करे रहता उसे दो, नहीं बोल के नहीं बोलते, तुम्हारा भी काम है देना, दो। तुम्हें गलती जो करे रहता उसे दो, जो गलती नहीं करे रहता उसे नको दो। क्यों बोले तो आगे बस वाला ट्रैफिक करे रहता, 3-3 4-4 बस्सा लगे रहते। तुमने अगर मेरी बात यकीन नहीं रही तो मैं वीडियो करके तुमने दिखाता हूँ। आज मैं ये सारे माध्यम के थ्रू मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को, ये सारी तुम्हारे बीजापुर की मीडिया वालों को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज को तुम जरूर उठाना। क्यों बोले तो ऑटो वाले को जितनी तकलीफ है किसी को भी नहीं है। तुम्हें सुने होंगे सुनील गौड़ा साहब ने जो बात की है स्टेज के ऊपर, हमारे जिंदगी में पहली बार कौन भी साथ आया तो ऑटो वाला चाहता है हर एक ले को, और कौन नहीं आता? बस वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला नहीं आता। पहला तुम्हारा क्या भी हुआ तो पहला ऑटो वाला याद आता तुमने। इसलिए मैं बोलता हूँ पहला ऑटो वाले को सब डिपार्टमेंट वाले मिला को तुम्हें सपोर्ट करना। तुम्हें ऑटो वाले को सपोर्ट करे तो ऑटो वाला तुम्हारे को सपोर्ट करता। और पहली फुर्सत में गांधी चौक का जो वन वे है, जो गांधी चौक से शिवाजी सर्कल है, गांधी चौक बसु सर्कल से गांधी चौक है, ये वन वे निकालना, चौपीर गाड़ी छोड़ देने की, छोड़ना, ट्रैफिक कम होती। तुम्हें पूरे गांव के गाड़ी लेकर को एक मार्केट में एक लाइन में दिए तो ट्रैफिक होने वाली। ट्रैफिक हुई तो हुई, तुम्हें एक एएसआई को, एक पीएसआई को नहीं डाल रहे, वहां नहीं डालने की वजह से पूरी ट्रैफिक होती। हमारी एक रिक्वेस्ट है पूरे डिपार्टमेंट वालों से, पूरे डिपार्टमेंट वालों को हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारा काम जल्द से जल्द होना। आने वाले दिनों में हमारे काम के ऊपर तुम्हें तवज्जो नहीं दिएंगे तो उग्र होराटा भी करते हैं, और पूरे आने वाले दिनों में पूरे ऑटो पूरे बंद करते हैं। एक बार हुआ था ऑटो पूरा बंद, तुम्हारे को मालूम है, उसके अंदर मैं भी था। वही तरह और एक बार इसका उठाने का हमला मुद्दा मिलता, तुम्हें हमारे सवाल नहीं करे तो हमें मुद्दा उठाते हैं। मैं ये 2 बात बोल के, हाँ, मेरा नाम नबीलाल लाबकश निड़गुंदी, उपाध्यक्ष। ऑटो वाले ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते बोले तो
ट्रैफिक वाले आपको अगर सही सी उनकी ड्यूटी करे तो हर एक ऑटो वाला सही सी निकलता, सही सी ड्यूटी रहता उन्हीं भी। जब ऑटो वाले के पीछे डिपार्टमेंट ही नहीं है तो डिपार्टमेंट के सीपीआई को जाको पूछो तुम्हें, मैं जाको खुद मैं 10 बार बोलूं साहब वहां एक लेख ठहरा करो, वहां एक लेख ठहरा करो, वहां एक लेख ठहरा करो, बोले तो सिब्बंदी नहीं यहीं करको बोलते हैं सीधा हमला। एक गणपति का जब फंक्शन हुआ, क्या हुआ, गणपति से पहले से हमला ये बात बोलते हैं ना, आज तक नहीं आए, अभी तक कौन सा सिब्बंदी नहीं आ रहा गांधी चौक में। हमें और जमजम एसोसिएशन यूसुफ जो हैं उनके अध्यक्ष, उनको बुला ले जाकर बोले हमें, तो भी सीपीआई लगा रहे नहीं, उन्होंने बोलते हैं उन्हें क्या है वहाँ ट्रैफिक नहीं, हमारे पास सिब्बंदी नहीं है, सिब्बंदी आए के बाद में पहले गणपति होंगे बोले, फिर बाद में दसरा होंगे बोले, उसके बाद में दीपावली होंगे कर बोले, दीपावली के बाद में मुहर्रम हुआ, रमजान हुआ, सब कुछ हुआ। अब तक उन्होंने एक डिपार्टमेंट वाले एएसआई को और पुलिस को किसी भी नहीं छोड़े, इन्होंने ना छोड़ने की वजह से, इनकी गलती की वजह से पूरे आज ऑटो वाले के ऊपर ये बला रही। वन वे रखने से क्या प्रॉब्लम हो रही है और वन वे काटने से क्या जरूरत मिलती है? वन वे रखने से ये प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा भी पेशेंट रहा तो उसकी तो ऑटो के अंदर जान जाना गारंटी, ट्रैफिक के अंदर या डिलीवरी रही तो उसकी डिलीवरी होना गारंटी। केसी मार्केट लाइन में कभी ले को घुसा ऑटो वाला, उसकी डिलीवरी होना गारंटी। आधा घंटा 1-1 घंटा तुम्हें गांधी चौक के अंदर ठहर को देखो, मिनिमम 5 से 6 सिग्नल जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल गेट से गांधी चौक का सिग्नल पार होने तक 6 सिग्नल जाते हैं वहां तक। और तरकारी वाले तो इतना चौड़ा होकर बैठे वहां, क्या बोलना नहीं, उसके ऊपर कौन भी इंक्वायरी नहीं कर रहे। और ट्रैफिक ऑटो वाले करे बोल को पूरा भांडा लेकर को ऑटो वाले के ऊपर फोड़ता ही ना, ट्रैफिक वाले खुद ड्यूटी नहीं कर रहे। कि हमारा बीजापुर क्या है नहीं, फकीर बस्ती है। पहली बात तो यहाँ है नहीं, पूरे हर जात के हैं, सब पूरे हर जात के पूरे जने मिल को हैं। वैसे में क्या है नहीं, हमारे ऑटो ड्राइवर के अंदर सबसे ज्यादा गरीब आए इसके अंदर है नहीं। हमारे ऑटो ड्राइवर का नाम को आज तक नाम को किसका भी एक घर सैंक्शन नहीं हुआ गवर्नमेंट से, कौन भी दिए नहीं। हमारे ऑटो वालों को कौन भी नहीं दिए आज तक। किसके भी हैं क्या सब घर, कौन से भी किसके भी नहीं घर। खुद मैं भरता हूँ 3,500 रुपये घर का भाड़ा, और पूरे भाड़े के घर में हमें भाड़े क्या भरना, 300 रुपये कलेक्शन क्या देना हमें ऑटो का। और गाड़ियां पकड़े तो 500 रुपये इनको फाइन क्या देना, गैस क्या काटना, कलेक्शन क्या देना, इसके बाद में बच्चे सो हमें लेना। इसके अंदर क्या बचने वाला हम को पूरे ऑटो वाले को, उसके बारे में सब जने मिला को क्या है नहीं, हमें पूरे जने मिला को डिसाइड कर को अभी इसके आगे आप फैसला लेते हैं। पहली फुर्सत में क्या है नहीं, अब फिलहाल जो चले फिल वक्त है इसके बारे में पहला हमें मुद्दा बात करना कर बोल को। हमारे राजशेखर मठपतिया जो हैं हमारे उत्तर कर्नाटक के राज्य अध्यक्ष हैं, उनके अंडर में जो हमारे संगठन आए हैं, हमारे नूर इनामदार साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, इनके थ्रू अभी पहली फुर्सत में पहला अभी कर रहे हैं कि बोले तो बात करे तो हाथ करे तो खाली गाड़ियां पकड़ रहे हैं। और इन्होंने जो हमारे नबीलाल जो बोले ये बात करेक्ट है, जो गाड़ियां नहीं है बस में ठहरा कर को चिक्कर पड़े सर का भर ले जाते हैं। हाँ, ये जब बात को ऑटो में क्या है नहीं, एक पैसेंजर ज्यादा बैठा तो खलास झपका मारते हैं। कैसा वो तुम्हारा मुंगली जैसा सांप को जैसा झपका मारती तो वैसा झपका मारते हैं। और ये जब बात बोलते तुम नको। और एक बात है, पुलिस जो ठहरते हैं, अब ये साहब ठहरन दे, PSI साहब ठहरन दे, कौन भी ठहरन दे, उन्होंने क्या करते हैं मालूम है कि साथ में एक 3-4 जना के लिए ठहरते हैं। खाली क्या है ऑटो वाले देख लेते हैं, कौन आता कब कैसा लेना, वो जगह बस वाले नहीं लेते। ये बात इन्होंने जो बोले नहीं वो बरोबर बोले। अब फिलहाल हमारे सब जो हमें गरीब ड्राइवर हैं, देखो हमें ड्राइवर हमें राबना कैसा, हमें खाना कैसा, वैसे में रमजान का महीना चले, वैसे में इसके अंदर है देखो नहीं बोले तो भी 60% पूरे हमारे रोजा रहते हैं लोग। वैसे में हम लोग को 2 तरफ से वनवे करें। एक तो देखो बशेर सर्कल से गांधी चौक को जाने वनवे नो एंट्री डालें, और तुम्हारा कौली घाट से लेकर पूरा गांधी चौक तक हम लोग को नो एंट्री डालें। इसके अंदर गैस भी ज्यादा वेस्ट जाना, और हमारा पूरा नहीं वैसा, हमारा पूरा टाइम भी वेस्ट है। उसमें पैसेंजर की भी हालत खराब है। और पैसेंजर भी चंद जने ये भी बोलते हैं सबसे पूरे हमारे कर्नाटक के पूरे इंडिया के अंदर पूरे बीजापुर के अंदर सबसे ज्यादा तुम्हें कम सीट लेते हैं, 10 रुपए 20 रुपए कर कोई बैठे थे गोवा वाले, उन्होंने क्या बोल रहे थे तुम्हारा वहाँ एक डिस्टेंस बताया, जैसा कि बशेर सर्कल से खाली तुम्हारा लक्ष्मीगुड़ी तक जाने का तो 120 रुपए फाइनल कहते हैं, आना होता हो नहीं तो छोड़ो, ऐसा वहाँ का है कहते हैं। ये सिस्टम वहाँ का है हमारे बीजापुर में, सिवाय मेन सेंटर बीजापुर के ये LBS मार्केट गांधी चौक के दूसरा कहाँ भी नहीं है। गए तो कहाँ भी गए सर, सब जन मिला को आए तो पूरे जन मिला गांधी चौक को जाना है। गांधी चौक की शिवा हमना को कहाँ भी गए सरकार ने, कहाँ भी हमें राबे सरकार ने क्या भी नहीं हमें मिलना बोले तो यहाँ धड़पड़ना। अब हमना को राबने से हमना को नहीं मिलने लगा कर बोले तो हमें धड़पड़ना बोले तो अब धड़पड़ने का कौन होना साला, 1 सीट 2 सीट के वास्ते आज के वास्ते क्या है नहीं उन्हें। अब जरा गाड़ी आगे पीछे करा, जरा ट्रैफिक हुई कर बोले तो भी। अब एक बात बताता हूँ, उसमें चंद पुलिस डिपार्टमेंट में भी हैं अच्छे, उन क्या है समझा को भेजते हैं दोबारा नको कर बोल को। जैसा कि हमारे इससे पहले SP थे हमारे अजय सिंह हिलोरी सर है, उन्होंने क्या है ऐसा ट्रैफिक करने की वजह से 2 ड्राइवरों को 2 लकड़ियां देखो ठहरा करे, ठहर को जरा ड्यूटी करो, तुम को पुलिस के ऊपर मालूम पड़ता कैसा चलता कर को, ट्रैफिक नहीं करना बोल को, सबक मिलना बोल को। मगर आजकल हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ क्या है हाथ करना है 500 रुपए 200 रुपए,
ये टाइप हमारे यहाँ फाइन डाल रहे हैं। तो हमारे पूरे ऑटो वाले के वास्ते क्या है नहीं, पहली फुर्सत में अभी एक 10 दिन के बाद तुम्हें वन वे निकालते हैं। ये रमजान के महीने में केसी मार्केट के पास का, अब मैं तो कहता हूँ हमारे डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है 10 दिन एडवांस ही जरूर तुम्हें वन वे निकालो। ये तुम्हारा पहली फुर्सत में तुम्हारा रमजान का पूरा महीना वे तक है। तो इसके बाद में क्या है नहीं, जो भी है आगे चल को हमारे पूरे जो भी हमारे अधिकारी हैं, जो भी हमारे प्रेसिडेंट हैं, सब जने मिला को तुम्हारे साथ जरा डिस्कस करते हैं। और मेहरबानी कर को सबसे पहला हमारे बीजापुर के अंदर कौन से भी ऑटो वाले से घरा नहीं। और पहली फुर्सत में हमारे मेरे न्यूज के थ्रू मेरे तुम लोग को हमारे कर्नाटक के सीएम हमारे सिद्धरामैया सर को, हमारे डीके शिवकुमार सर को भी मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे बीजापुर में ऑटो रिक्शा यूनियन एक कॉलोनी बनाओ, ऑटो रिक्शा की कॉलोनी बनाओ। क्योंकि तो ऑटो ड्राइवर से किसी भी घर नहीं है, ये हमारे हालत तो बेहालत हैं। वैसे में फकीर बस्ती है, सब जने तुम ना को पूरे ए टू जेड पूरे जना मालूम है। जो बीजापुर में रहने वाले हैं उनको भी मालूम है, जो बीजापुर के बाहर रहते हैं उनको भी मालूम है बीजापुर की हालत कैसी है। क्योंकि तो 10-20 रुपए शीटा मार को मेरे अपने वाले, ये हिसाब हमारा चले सो है। और वैसे के अंदर हमारे पूरे ऑटो वाले के वास्ते क्या है नहीं, जरा तुम्हें एकदम नरम नजर से देखो। हमारे डिपार्टमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है चंद इसके अंदर डिपार्टमेंट वाले भी, उनको भी सलूट करना था, जाने चंद है एकदम उनके ऑटो वाले की हालत देखो संभाल को जाओ बाहर हता की नहीं कर बोल को समझा को भेजते हैं, मगर डायरेक्ट सीधा उन्होंने लगाम नहीं पकड़ते, लाए 500-1000 कर बोल। तो इसके बारे में क्या है नहीं, हमें यहाँ हमारे पूरे हमारे संघ की तरफ, हमारे पूरे हमारे उत्तर कर्नाटक इनके तरफ से क्या है, हमारे नूर इनामदार सर हमारे अध्यक्ष हैं, तो इनको ले को क्या है नहीं, इनके थ्रू क्या है हमें यहाँ डीसी ऑफिस को हमें मनवी देना थी। अभी इसके आगे भी कहाँ देने का वो पूरा देने वाले हैं। ये हिसाब से हमारा पूरे ऑटो ड्राइवरों के जानिब से क्या है नहीं, हमें हमारे पूरे बड़े बड़े जो भी अधिकारी हैं हमारे, जैसा कि हमारे MB पाटिल सर हैं, हमारे ये बीजापुर के मंत्री, वैसा सब पूरे जने में जो भी जने सब जना को हमारी एक रिक्वेस्ट है हमारे ऑटो वाले की तरफ से, खास करो पहला सबसे पहला जरा ऑटो वाले पहला घर का इंतजाम करो। घर का इंतजाम करे बोले तो कौन भी धड़पड़ता नहीं, कौन भी ट्रैफिक करता नहीं, कौन भी ऐसा एकदम आड़े तिड़े गाड़ा नहीं ठहरा करना। ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 11 ಕರ್ನಾಟಕ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.